Welcome to HMIIT everyone. Good morning to all. We are again come back with our Python programming with the Python. This is a special video tutorial series we are making for our Python students. So our today's topic is nothing but directory methods. We have seen before that directive seek and tell operation. Seek operation is used to move the pointer of a file, whatever the file read write pointer we can move at a particular place with the help of offset. Or tell method is used to tell the current position of file pointer. Okay, now directory methods is today's topic. So getting current working directive, how we can get a current working directive. For getting the name of current working directive, we use the function name get cwd. Cwd is nothing but current working directive. Get current working directive method. This method returns the name of current working directive. If you remember, we have learned various methods for the file: open, close, read lines, okay, split, r strip. So all these methods Python provide inbuilt. You must remember, not only for the exam purpose, for the future purpose also you have to remember. Okay, so directive methods we are going to learn here. So get current working directive method is used to tell what is the current directive. अब ये current directive होता क्या है? जब भी हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं ना, तो उसका एग्जैक्ट पाथ कौन सा होता है जहाँ पे हमारे प्रोग्राम सेव होते हैं, वो उसकी करंट डायरेक्टिव होती है. तो सी ड्राइव होती है, लेकिन उसमें कौन से फोल्डर के अंदर, ये हम इस कमांड के थ्रू, इस मेथड के थ्रू पता लगा सकते हैं. तो बहुत आसान है. फॉर गेटिंग द नेम ऑफ करंट वर्किंग डायरेक्टिव वी यूज द फंक्शन नेम्ड, जिसका नाम है गेट CWD, करंट वर्किंग डायरेक्टिव मेथड. ओके, गेट CWD method. This method returns the name of current working directive. For that also we have to import the OS module. तो एक प्रोग्राम सैंपल import OS, प्रिंट कर दो OS डॉट गेट करंट वर्किंग डायरेक्टिव. OS क्या है? मॉड्यूल. मॉड्यूल नेम डॉट मेथड नेम. ओके जनाई ध्यान दो बेटा, शीतल लातुरकर, पवार. OS डॉट गेट CWD. तो OS इस मॉड्यूल नेम डॉट, उसका मॉड्यूल नेम उसके ऑब्जेक्ट को ट्रीट करवा रहा है. ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, वेरिएबल नेम डॉट मेथड नेम. तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट गेट करंट वर्किंग डायरेक्टिव. सो विल सी दिस थ्रू द programs. Okay, so look everyone, our interpreter here. We have to import first. So import OS module. Then what we have to do, check the current directive, which is that must be printed. Okay, so we print के अंदर पास करूँगा मैं वो वर्किंग डायरेक्टिव को, और लिखूँगा क्या, OS डॉट गेट करंट वर्किंग डायरेक्टिव CWD. दिस इज अ मेथड. इट विल रिटर्न द पाथ. देखो मैंने बोला था सी ड्राइव पे होता है. सी में यूजर्स नाम का फोल्डर, डेल नाम का फोल्डर, ऐप डेटा, लोकल प्रोग्राम, पाइथन 38 मतलब 3.8 वर्जन है जो हमारा. लुक एवरीवन हियर 3.8.1. सो वो हमें करंट डायरेक्टिव का पाथ बताता है. तो दिस इज नथिंग बट what we are learning, directive methods. So with the help of these methods we can write a different programs to access the file, because we are learning file handling. This is the last video tutorial for file handling, and another will come for exception handling. Then our topic will finish related to Python file handling and exception handling. Okay, of a 6 unit also will finish. So import OS module, then directly access that method OS dot method name get करंट वर्किंग डायरेक्टिव. इसको हम प्रिंट कमांड में पास कर रहे, तो वो कंटेंट प्रिंट होंगे. मैं डायरेक्ट लिखूँ तो एग्जीक्यूट होंगे, लेकिन स्क्रीन पे दिखना चाहिए, इसलिए हम प्रिंट के अंदर लिख रहे हैं. ओके, सो दैट इज नथिंग बट गेट करंट वर्किंग डायरेक्टिव. सो दिस डायरेक्टिव टेल अस द करंट वर्किंग, where our projects save, whatever the program I used to write on the interpreter, वो save वहाँ पे होते हैं उस path पे. So that we have seen through the example. Then another, displaying all the files and subdirective inside the directive.
उसके लिए हम यूज़ करते हैं लिस्ट dir मेथड। ये बेसिक कमांड्स है हमारे कमांड प्रॉम्प्ट पे भी यूज़ करते हैं हम डॉस के कमांड, सेम वैसा ही, लेकिन दिस इज़ फॉर पाइथन। उसके लिए मुझे इंपोर्ट करना पड़ता है ओएस मॉड्यूल। तो इंपोर्ट ओएस मॉड्यूल प्रिंट os डॉट लिस्ट dir, लिस्ट द ऑल directives, we can create new directive, we can delete, we can remove. So these are the methods: see, list, डिलीट, क्रिएट। ओके, तो इंपोर्ट तो करके ही है क्योंकि हम इंटरप्रेटर पे हैं यहाँ पे नीले बार। ओके, सो लुक एवरीवन, शिवानी कस्तूरी ध्यान दो, इंपोर्ट ऑलरेडी है, डायरेक्ट में प्रिंट के अंदर क्या लिखूंगा, लिस्ट लिखूंगा, ओ एस डॉट लिस्ट, ओ एस डॉट list dir, list directive method, so it will list all the programs up till now whatever we have। देखो सबसे पहले ऐड का प्रोग्राम पढ़ा, फिर एब्स्ट्रैक्शन, ये सारे प्रोग्राम सेव किए हुए हैं। तो दिस इज, और याद करो ये पाइचैम ऑटोमेटिकली मॉड्यूल क्रिएट हुआ था, इनिट क्रिएट हुआ था जब हमने किया था प्रैक्टिकली ड्यूरिंग आवर क्लासेस। ओके, सो दिस ऑल आर द मेन डायरेक्टिव, सब डायरेक्टिव, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फाइल के अंदर फोल्डर के अंदर। सो वॉट एवर लिस्ट डायरेक्टिव, ओ एस मॉड्यूल सबसे पहले इंपोर्ट कर दिया, वो तो ऑलरेडी था हमारा। फिर प्रिंट ओ एस डॉट लिस्ट डायरेक्टिव, ओके, मॉड्यूल नेम डॉट मेथड नेम, मेथड नेम क्या है, लिस्ट dir, तो लिस्ट कर दी उसने सारी डायरेक्टिव्स। तो डायरेक्टिव को लिस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं दिस मेथड। ओके, उसके बाद देखो कौन सा मेथड यूज़ होता है, लुक एवरीवन ध्यान देना, उसके बाद कौन सा मेथड यूज़ होता है, तो हमें वेट, वी आर एट द कमांड प्रॉम्प्ट, same commands executed, that's why it is repeating again and again। so another is nothing but list dir। देखा, अब create directive के लिए हम यूज़ करते हैं कमांड, क्रिएट डायरेक्टिव को कहा जाता है mkdir, मेक डायरेक्टिव, mkdir। तो एक आदि कोई भी डायरेक्टिव हम क्रिएट कर देंगे, आपको इस लिस्ट में देखो कोई डायरेक्टिव दिखेंगे नहीं, हम नई वाली क्रिएट करेंगे तो उसको भी प्रिंट करना पड़ेगा ना मुझे, प्रिंट के अंदर ही लिखूंगा मैं mkdir। इंपोर्ट तो हम कर चुके होते हैं। ओके, सो पहले मैं क्रिएट कर देता हूँ ओ एस डॉट mkdir, फिर ब्रैकेट में उसका नाम और पाथ। सपोज मैंने डायरेक्टिव क्रिएट कर दी यहाँ पे AABBCCC, दिस इज अ नेम ऑफ डायरेक्टिव। ओके, क्रिएट हो गई। अभी दिखेंगी कैसे, फिर से डायरेक्टिव के अंदर जाना पड़ेगा, तो मैं फिर से क्या करूँगा, प्रिंट os डॉट लिस्ट dir, लिस्ट करो डायरेक्टिव, तो मुझे ये दिखनी चाहिए मेरी AABBC। वाई वी हैव, आई हैव रिटन AABBC, क्योंकि वो ए अल्फ़ाबेटिकली से होता है ना, तो पहली लाइन में आ जाएगा, मुझे इतने बड़े में ढूंढना नहीं पड़ेगा और कुछ लिखता था। यू मे बी थिंकिंग सर आर गोइंग टू राइट द पांडव एंड प्रियांशी वॉट एवर, है ना। तो मैंने ये नाम इसलिए लिखा क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली पहला आता है तो हमें जल्दी दिख जाएगा यहाँ पे, उसके पहले हमें एब्स्ट्रैक्शन ही था ना, इसलिए। वैसे ये सारे डायरेक्टिव्स है जो भी हमने क्रिएट किए हैं और जो भी हमने प्रोग्राम बनाए हैं, तो फिर से मैंने mkdir की मदद से उसे क्रिएट किया। अगर मैं फिर से कोई और क्रिएट करना चाहता हूँ तो यू कैन लुक, देखो लास्ट में सबसे कौन से बेटा यहाँ पाए कैच। ओके, उस पोजीशन पे मैं आपको एक डायरेक्टिव क्रिएट करके दिखाता हूँ। अगेन सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू हियर। ओके, तो मैं नाम क्या दे दूँगा इसको, पता है क्या, Z बिकॉज दैट विल बी लास्ट कैरेक्टर ऑफ अल्फ़ाबेट ना। सो अब लिस्ट करने के बाद दिखेगा मुझे, तो लिस्ट करने के लिए हमारे पास कमांड है os डॉट लिस्ट डायरेक्टिव। ओके, दैट इज अवर मेथड, एग्जीक्यूट। देखो Z हियर 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 Z यहाँ पे आया है। वो इनिट में जो ये ब्लैंक स्पेस से शुरू हो रहा है ना, तो ये Z के बाद आता है ना, क्योंकि Z से शुरू होता है ना अल्फ़ाबेट हमारा। आस्की कोड 65 97, जब वो 26 ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद आते हैं दूसरे स्पेशल सिम्बॉल्स। तो ये हमारा स्पेशल सिम्बॉल है ना अंडरस्कोर, तो वो Z के बाद आता है, इसलिए बाद में दिखा रहा है। सो हैव यू सीन दिस Z जो पहले नहीं था, जो पहले नहीं था, देखो पाई कैच के पहले Z नहीं था, राइट रीड ये वाला था। तो यू कैन सी हियर राइट और रीड इज हियर। हाँ, ओके, देखो
राइट और रीड है, उसके बाद जेड जेड आ गया, डब्ल्यू के बाद जेड. सो दैट इज नथिंग बट थ्री मेथड्स वी हैव सीन. अनदर आल्सो देयर. सबसे पहले हमने देखा गेट करंट वर्किंग डायरेक्टिव, फिर देखा लिस्ट डायरेक्टिव, अभी देखा एम के डी आई आर मेक डायरेक्टिव. अब रिमूव देखेंगे तो रिमूव के लिए मेथड यूज किया जाता है आर एम डी आई आर. आर एम डी आई आर सेम आर एम डी आई आर मेथड इज ऑल्सो सेम. फिर लिस्ट करके ही हम देख सकते हैं कि वो रिमूव हुआ कि नहीं हुआ. ओके तो ओ एस डॉट आर एम डी आई आर, देन फाइल नेम आर एम डी आई आर. तो आर एम डी आई आर फाइल नेम में यही देता हूँ, जो जेड जेड लिया था उसको अभी गायब कर देंगे हम, तो फिर से ये डायरेक्टिव हमारी गायब हो जाएंगी यहाँ से. ओके सो रिमूव डायरेक्टिव, रिमूव हो गए जेड जेड. फिर से लिस्ट करके देखो रिमूव हुई कि नहीं हुई, तो आपको दिखेगा. ओके सो लुक एवरीवन राइट. फिर इनिट आ गया, जेड जेड गायब हो गई. जो हमने पहली बनाई थी इसको भी गायब करेंगे हम, इसको भी गायब करना है अगर मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा, मॉड्यूल नेम डॉट रिमूव डायरेक्टिव. रिमूव डायरेक्टिव के लिए क्या यूज़ करते बेटा हम. ओके what we use rmdir remove directive, in which write the name of file that will also remove. For that also we have to see, we have to print the list directive. I am just copying and paste. ठीक है सो लुक एवरीवन व्हाट यू आर लुकिंग. यहाँ से हमारी चले गई ए बी बी, जो दो क्रिएट की थी वो डिलीट भी कर दी. तो व्हाट वी हैव सीन इन दिस दैट इन दिस okay methods, four methods we have seen directive methods. first method देखा हमने directive का get cwd get current working directive. os dot get current working directive डायरेक्ट आ जाता है विदाउट पैरामीटर. os dot list dir लिस्ट कर देता है नंबर ऑफ डायरेक्टिव्स को क्रिएट करने के लिए. क्या यूज करते हैं हम, mkdir os dot mkdir एनी नेम that will be created. रिमूव करने के लिए हम rmdir यूज करते हैं. इंपोर्ट मॉड्यूल ओएस तो करना पड़ता है. rmdir रिमूव डायरेक्टिव, उसके अंदर नाम पास कर दो, जैसे os डॉट रिमूव भी यूज कर सकता है, os डॉट rmdir माई प्रोग्राम पाथ दोनों हो जाता है. ओके then so these are nothing but the four directives we have seen. what are nothing but Kasturi or Shivani, you have to comment these four directives, then I will understand. Yes, you have seen. So four directive methods. Nilevar, you have to also comment the names of four directives. What are the names of four directives? Sheetal, you also. Four students has to. Okay, we'll see. Okay, so get current working directive, then list directive, then क्रिएट डायरेक्टिव, जिसको बोला था क्रिएट डायरेक्टिव के लिए क्या यूज किया हमने, ओके एमके डी आई आर. रिमूव डायरेक्टिव के लिए आर एम डी आई आर. तो प्रियंका मालिकर यू ऑल्सो, आप सभी को कमेंट में ये चारों कमांड्स लिख दें. सो आई विल गेट दैट यू आर लुकिंग दिस ऑल थिंग्स एंड ऑल स्टफ वॉट एवर वी आर डूइंग. ओके आवर programs already we have seen based on file handling. Another programs also we are continuing. So what is the purpose of program? Look everyone, write a program in a Python to count the number of vowels and consonant present in the text file. You know very well vowel a e I o u, consonant remaining वाले. तो 26 अल्फाबेट में से a e I o u स्वर निकाल दिए हमने, है ना निकिता और अभिलाषा. तो कंसोनेंट बन जाते हैं 21. तो मुझे वॉवेल्स भी बताने, कंसोनेंट भी बताने, इनको गिन के बताना है, उसके लिए हमें प्रोग्राम देखना है. सो लुक एवरीवन, सिंपल कंसेप्ट. वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम to open one file and count how many vowels are there and how many consonants are there. How many vowels are there, how many consonants are there, that we have to see. So look everyone, बहुत सिंपल प्रोग्राम है. एक फाइल को ओपन किया, जिस फाइल ऑब्जेक्ट से ओपन किया उसका नाम है इन फाइल, क्योंकि उस फाइल को हम रीड करने जा रहे हैं, इसलिए फाइल का नाम, फाइल ऑब्जेक्ट का नाम इन फाइल दिया. इफ यू हैव सीन ऑल द वीडियोस बिफोर दिस you will get what I am saying, what the name of file object. It is very easy, you can understand. Before that you must see all the previous videos, 4 to 3 videos here we are having just. Okay, in file, file object equals to open method file name with mode. तो फाइल का नाम है sudesh1.txt. निविदा इसके अंदर सेव है ना,
वेलकम टू HMIIT, यू आर कोरोना बैच पास आउट। ओके, तो रीड मोड में एक फाइल को ओपन किया जिसका नाम है sudesh1.txt। रीड मोड में उसको ओपन किया प्रियांशी। ओके, फाइल ओपन हो जाने के बाद एक वॉवेल्स नाम का सेट बनाया। सेट, वी हैव लर्न सेट कैसे क्रिएट करते हैं बेटा। वॉवेल्स इज अ नेम ऑफ सेट इक्वल्स टू, जैसे ही मैं ब्रेसेस देता हूँ वो सेट कहलाता है, और सेट यूनिक होता है। स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर आर केस डिफरेंट आस्की कोड होता है, तो वो यूनिक ही है बेटा। कैपिटल ए स्मॉल ए यूनिक इसलिए है क्योंकि उसका आस्की कोड अलग होता है। तो सेट में यूनिक वैल्यू होती है, रिपीट लिखो तो वो लेता नहीं है, एक ही लेता है। तो सेट बना दिया, सेट में से हम कोई भी वैल्यू चूज करते, तो एक सेट बना दिया मैंने वॉवेल्स का। AEIOU कैपिटल में भी, AEIOU स्मॉल में भी। मैं चेक करूंगा इसमें से कोई है क्या, तो फिर वॉवेल्स के काउंट को 1 से बढ़ा दूंगा, है ना। एक कंसोनेंट का भी सेट बनाया, सेट सेट सेट, जो भी चीज़ें इसके अंदर रहेंगी वो सेट के फॉर्म में बन जाएंगी। सेट मतलब यूनिक चीज़ें। इफ़ यू आर रिमेंबरिंग प्रियंका मालिकर और प्रियांशी और नीलेवार, तो सेट में पढ़ा था हमने, यूनिक रहता है। कितने भी डिफरेंट दे दो एक ही बार लेता है, अलग रैंडम कॉम्बिनेशन से ले लेता है, यूनिक यूनिक लेता है। लेकिन तो सेट मेथड है जो इसको सेट में कन्वर्ट कर देगा, उसका नाम मैंने वॉवेल दिया। तो वॉवेल इज अ सेट ऑफ AEIOU स्मॉल और कैपिटल। कंसोनेंट इज अ सेट ऑफ ऑल रिमेनिंग अल्फाबेट्स एक्सेप्ट AEIOU। तो 2 सेट क्रिएट कर दिए मैंने। ओके, अब मुझे गिनना है वॉवेल कितने हैं, कंसोनेंट कितने हैं, वॉवेल कितने हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस प्रोग्राम? साक्षी भाला, लुक एंड लिसन केयरफुली। वैष्णवी मते, लिसन केयरफुली। ओके, एक प्रोग्राम में हमें फाइल को ओपन करना है, फाइल के अंदर अल्फ़ाबेट रहते हैं ना, तो उस अल्फ़ाबेट में कितने वॉवेल्स है और कितने कंसोनेंट है। वॉवेल्स और कंसोनेंट तो समझता है सबको, स्वर बोलते हैं हम जिसको हिंदी में। निकिता बराबर है ना? ओके दीक्षा, तो नंबर ऑफ वॉवेल्स और नंबर ऑफ कंसोनेंट प्रोग्राम में कितने हैं वो हमें गिनना है। तो गिनने के लिए मैं मैचिंग करूंगा ना, ए है क्या, ए है क्या, है तो हाँ वो वॉवेल है, हाँ वो वॉवेल है। ई है क्या, तो मुझे कुछ कलेक्शन तो लगेगा ना जिनको ढूंढना है। तो मैंने एक वॉवेल्स का कलेक्शन बना के रखा, क्योंकि लेटर्स कैपिटल भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं। तो AEIOU कैपिटल, AEIOU स्मॉल, दोनों को कंबाइन रखा है क्योंकि दोनों का आस्की कोड अलग होता है। तो उसका एक सेट बना दिया, सेट यूनिक वैल्यू। उस सेट का नाम है वॉवेल्स। लिस्ट क्रिएट करते वैसे ही सेट क्रिएट किया है हमने, विदाउट यूजिंग सेट। अगर ब्रेस भी दे दो सेट होता है, लेकिन सेट लिखने का मतलब सेट मेथड से इसको सेट ट्रीट करेगा बेटा वो। ओके साक्षी भाला, देन और एक सेट बना दिया मैंने कंसोनेंट्स का, कंसोनेंट्स और रिमेनिंग ऑल द अल्फाबेट, स्मॉल लेटर ऑल्सो कैपिटल लेटर ऑल्सो। पहले कौन सा भी लिखो बाद में कौन सा भी लिखो, डजंट मैटर। इसीलिए देखो यहाँ पहले कैपिटल स्मॉल, दैट इज अ सेट यूनिक वैल्यू। अब मुझे गिनना है वॉवेल्स कितने हैं, कंसोनेंट कितने, तो मैं मैचिंग करूंगा। पहला कैरेक्टर कैपिटल ए है क्या, है, तो वॉवेल्स के काउंट को 1 से बढ़ा दो। पहला कैपिटल पहला लेटर कंसोनेंट है क्या, है, तो कंसोनेंट के काउंट को 1 से बढ़ा दो। तो इनिशियली काउंट ऑफ वॉवेल्स 0 ले लिया, इनिशियल काउंट ऑफ कंसोनेंट 0 ले लिया। किसी भी फाइल में जाओ, नंबर ऑफ कंसोनेंट वॉवेल गिनने हैं। अब मैं लूप लगाऊंगा, क्योंकि जब भी हम किसी फाइल को ओपन करते हैं, रिमेंबर लाइन बाय लाइन हम उसको रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ओपन करके आए बेटा हम फाइल को, तो इन फाइल, फाइल पॉइंटर पॉइंट कर रहा है फाइल के पहले लाइन को, पहले लाइन के पहले कैरेक्टर को, फाइल के पहले लाइन के पहले लाइन के पहले कैरेक्टर को। फॉर इटरेटिव वेरिएबल सी, फॉर अ कैरेक्टर सी लिया मैंने, कैरेक्टर का सी आता है। फॉर इटरेटिव वेरिएबल इन सिक्वेंस, अब मैं सिक्वेंस क्या पास कर रहा, इन फाइल, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड, पूरी फाइल रीड होंगी। और जब भी हम फाइल को रीड करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सेस होता है, रिमेंबर, then you will get all the programs after that we are going to see in this video. okay, so एक फाइल है जिसको ओपन करना है हमें, उसके अंदर नंबर ऑफ कंसोनेंट और वॉवेल्स कितने हैं। तो बेटा एक वॉवेल्स का सेट बना दिया दीक्षा, और एक कंसोनेंट का सेट बना दिया दीक्षा। ओके, वॉवेल्स को इनिशियली काउंट 0 ले लिया दीक्षा, और कंसोनेंट का इनिशियली काउंट ले लिया। ओके एवरीवन, ओके दीक्षा ऑल्सो, एवरीवन हु इज लुकिंग। So count of vowels and count of consonants is initially 0 0. अब मैंने एक for loop लगाया,
फॉर, क्योंकि जब भी फाइल को एक्सेस करना है ना फॉर लूप लगाते हैं. बिफोर दिस video, whatever the programs you have seen, we have seen how to do the programming of the file with for loop और with के साथ भी, with कीवर्ड के साथ भी ओपन किया था हमने फाइल को. यहाँ पे भी करेंगे बहुत सारे प्रोग्राम्स में. फॉर इटरेटिव वेरिएबल दैट इज सी इन सीक्वेंस, सीक्वेंस की जगह में पास क्या कर रहा बेटा जनाई, इन फाइल डॉट रीड. इन फाइल इज अ फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड, तो पूरी फाइल रीड होंगी. वो पूरा फाइल मेरा सीक्वेंस पास कर दिया, उसकी एक एक लाइन को ट्रैवर्स करेंगे. और जैसे ट्रैवर्स करेंगे तो पहले लाइन का पहला कैरेक्टर देखो कैसे चेक करता है. उसके अंदर फॉर लूप की बॉडी है ये, जैसे कोलन लिखा यहाँ पे 4 स्पेसेस के बाद बॉडी शुरू हुई ना. ओके, बाय डिफॉल्ट आता है इफ सी इन वॉवेल्स, इफ सी इन वॉवेल्स. देखो इन 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 क्या था, इन भी हमने कीवर्ड पढ़ा है और ऑपरेटर है. इन इन भी हमने कीवर्ड्स में पढ़ा है. इज इन, वो इसके अंदर है क्या, हमने चेक किया था, याद करो. इन इज, भाई ये इसके अंदर है क्या, है तो यस, नहीं तो नो, हाँ ना. और जितने भी आपको रेड कलर में दिख रहे, दे आर द कीवर्ड्स फॉर, इन, इफ, एलिफ. ओके, इफ सी, सी मतलब मेरे फाइल का पहला कैरेक्टर, पहली लाइन का पहला कैरेक्टर. इफ सी इन, सी इनके अंदर है क्या, इन क्या है, वॉवेल्स. वॉवेल्स मतलब ये सेट. सी है सपोज मेरा पहला कैरेक्टर था आई, तो वो चेक करेगा आई है क्या, इसमें है क्या कैपिटल की स्मॉल, जो भी होगा वो अगर मैच हुआ, सपोज स्मॉल है तो मैच होगा, यस है. तो इफ की कंडीशन की बॉडी के अंदर गए, देखो कोलन है, कोलन कोलन की बॉडी के अंदर गए, काउंट ऑफ वॉवेल्स प्लस इक्वल टू 1, मतलब 1 से इंक्रीज करो. शॉर्ट हैंडेड ऑपरेटर बोलते हैं हम इसको, है ना. अभी तक बहुत सारे प्रोग्रामिंग पढ़ चुके हो आप. शॉर्ट हैंडेड, इसको कैसा लिखते थे हम, काउंट ऑफ वॉवेल्स इक्वल्स टू काउंट ऑफ वॉवेल्स प्लस 1. इसको डायरेक्ट शॉर्ट में लिख रहे हैं काउंट ऑफ वॉवेल्स प्लस इक्वल टू 1, मतलब 1 से इंक्रीज करेंगे काउंट ऑफ वॉवेल्स के काउंट को. और इनिशियली काउंट ऑफ वॉवेल्स का काउंट 0 है. ये कब हुआ, इफ द पॉइंटर सी इज पॉइंटिंग फर्स्ट कैरेक्टर इज इन वॉवेल. पहला कैरेक्टर जो मुझे फाइल में से मिला है वो वॉवेल में है क्या, वॉवेल में मैच करेगा, मिला तो है तो वॉवेल्स के काउंट को 1 से बढ़ा देने का. नहीं तो एल्स इफ, एलिफ सी इन कॉन्स, अगर वॉवेल नहीं होगा तो एल्स में, कॉन्स में होगा तो कॉन्स में जाके देखो. सर ये नहीं तो वो तो होगा. अभी सिर्फ 26 कैरेक्टर थोड़ी होती हैं, 256 कैरेक्टर होते हैं फाइल के अंदर. इसीलिए एलिफ में भी कंडीशन लिखनी पड़ी, क्योंकि 26 ही कैरेक्टर रहते थे. 26 कैरेक्टर, अल्फ़ाबेट 26 रहते हैं, 26 अल्फ़ाबेट रहते हैं. लेकिन स्पेशल कैरेक्टर आता है, नंबर आता है, डिजिट आता है, वो भी तो हो सकता है ना. इसीलिए एल के साथ एफ भी, अगर वॉवेल नहीं होगा तो एल्स इफ के अंदर सी को चेक करो, सी इन कॉन्स क्या कंसोनेंट है, फिर चेक करने जाएगा कंसोनेंट के अंदर और उस सेट में से कैपिटल स्मॉल जो भी अल्फ़ाबेट होगा अगर, तो हम काउंट को इंक्रीज करेंगे किसके, कंसोनेंट के, प्लस इक्वल टू 1, मतलब 1 से इंक्रीज करेंगे. सिंपल सा प्रोग्राम है. 2 सेट बना दिए, एक सेट का मतलब एक वॉवेल का सेट, एक कंसोनेंट का सेट. फाइल को ओपन कर दिया, जब भी ओपन करते फाइल पॉइंटर पहले लाइन को पॉइंट करता है, एक वेरिएबल लगा दिया फॉर सी इन फाइल, फॉर इटरेटिव वेरिएबल इन सीक्वेंस, इटरेटिव वेरिएबल को सी ले लिया, इन सीक्वेंस पास कर दिया, फाइल पॉइंटर डॉट रीड, फाइल को रीड कर रहे, पहले कैरेक्टर को पॉइंट करेगा सी, फिर चेक कर रहे सी इन वॉवेल्स, क्या सी पहला कैरेक्टर मेरा आई है, सपोज वो वॉवेल में है क्या, चलो देखने चलो, है, यस है तो उसकी बॉडी काउंट वॉवेल्स को 1 से इंक्रीज कर दो. नहीं तो सपोज और कुछ है तो उसको चेक करो. अब बोलोगे सर ये नहीं तो वो नहीं, क्योंकि अल्फ़ाबेट 256 मतलब कैरेक्टर सेट 256 होता है ना, हम तो अल्फ़ाबेट चेक करें, इसलिए एल के बाद इफ बी, फिर से देखो सी इन कंसोनेंट, ये नहीं तो वो कंसोनेंट है क्या, है अगर तो बॉडी में जाएंगे, नहीं तो नीचे जाएंगे फॉर का दूसरा इटरेशन. कब तक, जब तक पूरी फाइल फिनिश नहीं होती, क्योंकि मैंने सीक्वेंस क्या पास किया, कंप्लीट फाइल रीड करना है बेटा, हमें कंप्लीट फाइल रीड करना है. रीड लाइंस मेथड यूज होता है सिंगल लाइन को रीड करने के लिए, और रीड क्या करता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करता है बेटा, और पूरी लाइन डिस्प्ले करेगा फाइल पॉइंटर, लेकिन उसके सिंगल सिंगल कैरेक्टर की पोजीशन चेंज होती है विद द हेल्प ऑफ सिक ऑपरेशन, और टेल ऑपरेशन पोजीशन बताता है.
तो दोनों के काउंट बढ़ जाने के बाद फाइनली प्रिंट क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ वॉवेल्स इन द फाइल आर काउंट ऑफ वॉवेल्स, द नंबर ऑफ कंसोनेंट इन द फाइल्स आर काउंट ऑफ कंसोनेंट. अगेन आई एम गोइंग टू टेल, रिमेंबर, याद रखो, एक फाइल ओपन की हमने रीड मोड में, उसको ऑब्जेक्ट है फाइल पॉइंटर इन फाइल. इसकी मदद से हम, क्योंकि जब भी हम कोई फाइल ओपन करते हैं ना, फाइल पॉइंटर उसकी फर्स्ट पोजीशन को पॉइंट करता है, जिसको हम फाइल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, उसका नाम है इन फाइल. एक सेट बनाया AEIOU स्मॉल और कैपिटल, क्योंकि ये वॉवेल्स का सेट है. एक सेट बनाया कंसोनेंट का, रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स एक्सेप्ट AEIOU को छोड़ के बचे वाले. तो दो सेट बना दिए. इनिशियली वॉवेल का काउंट 0, इनिशियली कंसोनेंट का काउंट 0. एक फॉर लूप लगा दिया, फॉर इटरेटिव वेरिएबल इन सीक्वेंस. सीक्वेंस क्या है, पूरी फाइल. तो पूरी फाइल को एक्सेस कैसे करते, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड. फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड मालिकर, ये क्या हो गया, सीक्वेंस. उस सीक्वेंस में चेक कर रहा, इफ सी है पहला कैरेक्टर, क्योंकि 0 को पॉइंट कर रहा ना फाइल पॉइंटर. इन वॉवेल, क्या सी जो पहला कैरेक्टर सपोज मेरा आई है, वो वॉवेल में है क्या, है वॉवेल में, तो उसकी बॉडी के अंदर जाके वॉवेल के काउंट को बढ़ा दो. नहीं तो फिर उस सी को चेक करो, कंसोनेंट में है क्या, है, तो कंसोनेंट के काउंट को बढ़ा दो. नहीं तो उसका दूसरा इटरेशन दूसरे कैरेक्टर को चेक करेंगे. से पूरी फाइल रीड होंगी, क्योंकि फॉर क्या है, फॉर इटरेटिव वेरिएबल इन सीक्वेंस. पूरी फाइल रीड होंगी. और फाइनली नंबर ऑफ काउंट ऑफ वॉवेल्स और काउंट ऑफ कंसोनेंट प्रिंट होगा. फाइनली इन फाइल डॉट क्लोज. क्लोज क्यों करना पड़ता फाइल को, मुझे साक्षी भाला इसका आंसर होना कमेंट में. क्लोज क्यों करना पड़ता पता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने रिसोर्सेज को रिलीज करना पड़ता है, इसलिए जो भी वो अलोकेट करता है. ओके, सो वी आर गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम. देखो बेटा, नंबर ऑफ वॉवेल्स मेरे फाइल में है 71 और नंबर ऑफ कंसोनेंट फाइल में 102. डेफिनेटली कंसोनेंट ज़्यादा ही रहेंगे, क्योंकि कंसोनेंट 21 होते हैं और वॉवेल्स 5 ही होते हैं, AEIOU, पांडव. ओके, 5. सो 71 102. ये हमारी वही फाइल है जो हम हरदम ओपन करते हैं, सुदेश नाम की फाइल है. आप गिन के भी देखना आपके फाइल में, प्रोग्राम में, जब भी हम फाइल को ओपन करते हैं तो बराबर आपको 71 वॉवेल्स मिलेंगे और 102 कंसोनेंट मिलेंगे. ओके, सो दिस इज नथिंग बट अवर प्रोग्राम वेयर वी हैव सीन. ये प्रोग्राम आ सकता है आपको एग्जाम में डेफिनेटली. राइट अ प्रोग्राम इन फाइल हैंडलिंग टू काउंट द नंबर ऑफ वॉवेल्स एंड कंसोनेंट. बहुत आसान है. दो सेट बना दिए, AEIOU कैपिटल स्मॉल, ओके, और एक सेट बना दिया रिमेनिंग अल्फ़ाबेट का कैपिटल स्मॉल. काउंट ऑफ वॉवेल 0, काउंट ऑफ कंसोनेंट 0. फॉर लूप लगा दिया, पूरे फाइल को रीड कर रहे, चेक कर रहे, भाई मेरा फाइल का पहला पॉइंटर वॉवेल है क्या, नहीं तो कंसोनेंट है क्या, जो है वो बड़ा. ऐसे कर पूरी फाइल जब फिनिश हो जाएंगी तो फॉर लूप की बॉडी यहाँ फिनिश होती है. ये सारा काम हो जाने के बाद फॉर लूप जब फिनिश हो जाएगा तो हम प्रिंट करते वॉवेल और कंसोनेंट को. निकिता और अभिलाषा. ओके, so this is all about is nothing but this program and another program we are going to see. So look everyone, have you got everyone what we are doing here? Okay, another program is very easy, you must see what we are going to see. Okay, so look everyone, ध्यान देना सभी. सो प्रोग्राम फॉर फाइल हैंडलिंग देखा हमने, नंबर ऑफ कंसोनेंट वॉवेल जितने भी फाइल में होंगे उतना काउंट आता है. अनदर प्रोग्राम, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन अ फाइल. बहुत आसान है यार. टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन अ फाइल, टोटल नंबर ऑफ लाइंस बहुत आसान है. कितने लाइन है यार, एक फॉर लूप लगा दो फाइल ओपन करने के बाद, फॉर लूप जितनी बार चलेगा उतने लाइंस होंगे. सिंपल, क्योंकि जब भी फाइल पॉइंटर रुक जाएगा लाइन खत्म. क्योंकि जब भी हम किसी फाइल को ओपन करते, रिमेंबर, वैष्णवी मते इधर उधर नहीं, इधर इधर वीडियो में देखना है, मोबाइल साइड में रखो. वैष्णवी मते, जब भी हम, सर मोबाइल में ही वीडियो देख रहे बोल रहा हम, जब भी हम फाइल पॉइंटर को की मदद से, फाइल ऑब्जेक्ट की मदद से किसी फाइल को ओपन करते हैं, वेन एवर वी आर गोइंग टू ओपन एनी फाइल, द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ दैट लाइन एंड फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ फाइल इज पॉइंटेड बाय द फाइल ऑब्जेक्ट. तो फाइल ऑब्जेक्ट किसी भी फाइल के पहली लाइन के पहले कैरेक्टर को पॉइंट करता है, मतलब पूरा रो, सिंगल रो को पॉइंट करता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करते आता है हमें उसे. ओके, ये याद रखना. तो ये चारों प्रोग्राम आपको अच्छे से समझेंगे. जब भी हम कोई फाइल ओपन करते हैं, फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ओपन फाइल नेम डॉट मेथड, फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ओपन, फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ओपन फाइल नेम कॉमा मोड. रीड है तो रीड मोड, राइट है तो राइट मोड, अपेंड है तो अपेंड मोड. एक्स मतलब ओनली फॉर फाइल क्रिएशन. इफ यू रिमेंबर ऑल द मोड्स, मोड्स भी आ सकते हैं एग्जाम में,
मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो ग्रुप पे मैसेज किए ही है आपको पाइथन के। इवन उसके अलावा भी मैक्सिमम पढ़ाई करो, बहुत टाइम है आपके पास। ओके, जुलाई से। देन सो और नेक्स्ट प्रोग्राम, जब भी हम किसी फाइल को ओपन करते हैं तो फाइल ऑब्जेक्ट उसकी पहले लाइन के पहले कैरेक्टर को पॉइंट करता है, इतना याद रखना बेटा। ओके, नाउ राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन अ फाइल। एक फाइल क्रिएट कर दी पहले हमने, उसके अंदर कुछ लिख दिया, हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है सुदेश नाम की फाइल। अब उसके अंदर काउंटिंग कैसे करते, बहुत आसान प्रोग्राम है बेटा। सो लुक एवरीवन, इनिशियली काउंट नाम का वेरिएबल 0 रखा क्योंकि गिनना है। अब हम यहाँ फाइल को ओपन कर रहे हैं अलग तरीके से, कैसे भी करो वैसे भी कर सकते हैं हम। विथ ओपन, विथ इज अ कीवर्ड, ओपन पाथ विथ अ मोड। हमें फाइल को रीड करना है ना, उसके अंदर की लाइन, तो रीड मोड में ओपन किया एज फाइल पॉइंटर ऑब्जेक्ट। दो तरीके हैं, प्रीवियस वीडियो देखना, दोनों तरीके पढ़े फाइल को ओपन करने के। इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे हम, fo इक्वल्स टू ओपन फाइल का पाथ और उसका मोड। fo इक्वल्स टू ओपन फाइल का पाथ और उसका मोड। हम विथ से ओपन कर रहे हैं, विथ ओपन पाथ ऑफ द फाइल एंड मोड एस फाइल ऑब्जेक्ट। तो फाइल ऑब्जेक्ट है fo। फिर एक फॉर लूप लगा दिया क्योंकि यहाँ कोलन आता है विथ के साथ, हम बॉडी में आ गए ओपन के। ओपन करने के बाद फॉर इटरेटिव वेरिएबल इन सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या है हमारा fo, सीक्वेंस क्या है fo। अब मैंने रीड fo डॉट रीड नहीं लिखा, fo डॉट रीड लिखता था तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करता था। मैंने सिर्फ इन सीक्वेंस फाइल पॉइंटर दे दिया, तो फाइल पॉइंटर लाइन बाय लाइन एक्सेस करते जाएगा। ओके, अब ये देखो, ये कमेंट होती है, इसको नहीं लिखा है आपके बुक में, नोट्स में ये लाइन एक्स्ट्रा, इसको आप गायब कर देना। ध्यान दो नीलेवार, प्रतीक्षा, साक्षी, इस प्रोग्राम में से ये लाइन बेटा आपको गायब करनी है, कोई काम की नहीं है ये लाइन, इसलिए मैंने उसको कमेंट में लिखा है। ये अगले प्रोग्राम में काम में आएंगी, इसलिए उन्होंने मेंशन की होंगी। लेकिन अभी के प्रोग्राम में जहाँ नंबर ऑफ लाइन गिनना है वहाँ पे कुछ नहीं करना, इस लाइन को आप गायब कर देना बेटा अपने प्रोग्राम में से एवरीवन। इसलिए मैंने समझाने के लिए, आपको याद रहना चाहिए कि इसको गायब करना है। सिंपल सा प्रोग्राम, नंबर ऑफ लाइंस। फाइल को ओपन किया, नॉर्मली भी ओपन कर सकते, विथ से भी ओपन कर सकते। एक फॉर लूप लगा दिया, फॉर लूप ऐसा क्यों देख रहा, क्योंकि ये विथ बॉडी है, उसके अंदर गए। फॉर इटरेटिव वेरिएबल इन सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट, तो फाइल ऑब्जेक्ट ये हमारा। काउंट प्लस इक्वल टू 1, मतलब काउंट को 1 से बढ़ाते, शॉर्ट हैंडेड ऑपरेटर बेटा। काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, दैट इज अ काउंट प्लस इक्वल टू 1। काउंट को 1 से बढ़ाएंगे क्योंकि ये सीक्वेंस में ये फॉर लूप कब तक चलेगा, जब तक, लाइन तो एक वेरिएबल का नाम है, कुछ भी ले लो यार, है ना। पहली लाइन के लिए एक बार लूप चलेगा तो काउंट को 1 से बढ़ाएगा, दूसरी और लाइन जब खत्म हो गए जाएंगे तो बैक स्लैश एन आ जाता है, बैक स्लैश एन एन तो हो जाता है, मतलब नल कैरेक्टर मिल जाता है। तो फॉर लूप कब तक चलेगा, जितने लाइंस रहेंगे और जितनी बार फॉर लूप चलेगा उतनी बार काउंट 1 से इंक्रीज होगा, और काउंट को प्रिंट कर देंगे तो फाइल के अंदर नंबर ऑफ लाइंस पता चलेंगे। हम पहले फाइल को ओपन करके देख लेते कितने नंबर ऑफ लाइंस है, तो हमें आउटपुट में वो दिखेगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइंस वी आर हैविंग। तो ये सुदेश 1.txt फाइल ओपन की, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइंस है हमारे पास इस फाइल में। देखो दीक्षा, दिख रहा है ना अभी क्लियर दीक्षा? ओके, 8 लाइन है हमारे पास यहाँ पे। ओके, सो ये फाइल थी हमारी। सो काउंट एक वेरिएबल इनिशियली 0 लिया, एक फाइल को ओपन किया, उसका फाइल ऑब्जेक्ट है fo। फॉर लूप लगा दिया, फॉर इटरेटिव वेरिएबल इन सीक्वेंस, इन सीक्वेंस फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लिखा तो पूरी फाइल का कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड होता है, जो इसके पहले देखा था वॉवेल्स और कंसोनेंट में। क्योंकि वॉवेल्स और कंसोनेंट में हमें पूरे वॉवेल्स लगते हैं, यहाँ पे पूरे वॉवेल्स नहीं, पूरी लाइन होना, तो डायरेक्ट सिर्फ फाइल ऑब्जेक्ट लिखने का। इस प्रोग्राम और इसके पहले वाले प्रोग्राम में फ़र्क क्या है समझना बेटा, इसमें और इसके पहले वाले प्रोग्राम में क्या फ़र्क है, लुक एवरीवन, इसमें और इसके पहले वाले प्रोग्राम में क्या फ़र्क है, लुक एवरीवन। इसमें और इसके पहले वाले प्रोग्राम में ये फ़र्क है, यहाँ हम जब फॉर लूप लगाते हैं ना बेटा तो क्या लिखते हैं, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड सीक्वेंस दिया तो वो एक एक कैरेक्टर रीड करता है। और अब भी जो हम प्रोग्राम पढ़ रहे हैं वहाँ डायरेक्ट क्या दे रहा है, मैं फॉर इटरेटिव वेरिएबल इन सीक्वेंस, कोई जगह में सिर्फ फाइल ऑब्जेक्ट पास कर रहा। अब जो प्रोग्राम हम पढ़ रहे वो वाला, अब जो हम प्रोग्राम देख रहे हैं उसमें। ओके, तो यहाँ फॉर लूप लगाने के बाद क्या कर रहा, फॉर इटरेटिव वेरिएबल
इन सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड नहीं लिख रहा, रीड कब लिखूंगा? जब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करना है, और जब सिर्फ फाइल ऑब्जेक्ट दूंगा तो लाइन बाय लाइन। याद रखना, जब फाइल ऑब्जेक्ट दूंगा लाइन बाय लाइन, जब फाइल ऑब्जेक्ट दूंगा लाइन बाय लाइन। यस, तो चले आए, पहली लाइन के लिए अंदर गया तो काउंट को 1 से बढ़ा गया, दूसरी लाइन के लिए अंदर गया, क्योंकि फाइल पॉइंटर पहली लाइन को पॉइंट करता है, दूसरी तीसरी चौथी, उसको आखिरी में \n मिल गया, मतलब नल कैरेक्टर मिल गया, जिसको हम डॉलर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे नल कैरेक्टर मिल गया। ओके, नल कैरेक्टर मिल गया उसको। यहाँ पे नल कैरेक्टर रिप्रेजेंट होता है वेरियस वे से, हर प्रोग्रामिंग में, माइक्रो प्रोसेसर में, इसमें उसमें, है ना। जैसे ही नल कैरेक्टर मिल गया, स्टॉप हो जाएगा फॉर लूप। फाइनली फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, काउंट को हम प्रिंट कर देंगे। हम गिन के आए थे हमारे फाइल में कितने लाइन्स थे, तो उतनी लाइन हमें आउटपुट में मिलने चाहिए। ओके, लुक एवरीवन, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स इन द फाइल आर 8। 8 लाइन है मेरे प्रोग्राम में। ओके, 8 लाइन है मेरे प्रोग्राम में। सो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। फाइल को ओपन किया रीड मोड में, फॉर लूप लगा दिया, और उसके अंदर काउंट को 1 1 से बढ़ाते जाएंगे। फॉर लूप उतनी बार चलेगा बेटा जितना सीक्वेंस होगा, जितने फाइल में लाइन्स होंगे। fo डॉट रीड लिखा ना, तो वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर गिनता है, और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर गिनता है ना, तो काउंट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स गिनेगा। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए हमारे पास अगला प्रोग्राम है। ये था नंबर ऑफ लाइंस का प्रोग्राम। ओके, सेम प्रोग्राम में एक लाइन बढ़ा दी तो क्या हो गया? नंबर ऑफ वर्ड्स। सेम काउंट को इनिशियल ये प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स, क्योंकि एक लाइन में 4 वर्ड हो सकते, 5 वर्ड हो सकते, 6 वर्ड हो सकते, 10 वर्ड हो सकते, 20 वर्ड हो सकते, 40 वर्ड हो सकते। जैसे देखो हमारे प्रोग्राम में दीक्षा दिख रहा है कि क्लियर? लुक एवरीवन, हमारे पहली लाइन में कितने वर्ड है? वेलकम टू HMIT, वेलकम, वेलकम टू HMIT, 3 वर्ड से बेटा इसमें, वेलकम टू HMIT, है ना, 3 वर्ड से हमारे पास इसमें। ओके, सो अभिलाषा समझ रहा है? देखो, सो फाइल को हमने, ये प्रोग्राम का पर्पस है, पहले प्रोग्राम का पर्पस था नंबर ऑफ लाइंस गिनना, इस प्रोग्राम का पर्पस है नंबर ऑफ वर्ड्स गिनना। पहला था नंबर ऑफ लाइंस, सिर्फ फाइल पॉइंटर का एक, फाइल पॉइंटर से फाइल को ओपन कर दिया, फॉर लूप में काउंट को 1 से बढ़ाते जाने का। फॉर लूप उतनी बार चलता है जितने लाइंस होते हैं। तो सेम मैं यहाँ पे भी फाइल को ओपन कर रहे रीड मोड में, ये मेरा फाइल ऑब्जेक्ट fo फॉर इटरेटिव वेरिएबल इन सीक्वेंस fo, फाइल ऑब्जेक्ट और रीड नहीं लिखने का, रीड लिखा तो नंबर ऑफ कैरेक्टर को से होते हुए जाता है, या नंबर ऑफ लाइन से होते जाएगा। फिर क्या लिख रहा मैं? वर्ड इक्वल्स टू लाइन डॉट स्प्लिट। स्प्लिट मेथड क्या करता है पता है? लाइन के अंदर जो वर्ड्स होते हैं ना, उनको सेपरेट करके उनको बना देता है वो लिस्ट के फॉर्म में, और लिस्ट का काउंट हम गिनेंगे। तो एक लिस्ट में कितने वर्ड्स होंगे, वो मेरे फाइल की लेंथ होंगी। सपोज इसकी मैंने लिस्ट बना दी, तो लिस्ट का पहला एलिमेंट रहेगा वेलकम, लिस्ट का दूसरा एलिमेंट रहेगा टू, लिस्ट का तीसरा एलिमेंट रहेगा HMIT, बराबर है। तो लिस्ट का काउंट कितना है? 3। तो लिस्ट की लेंथ को मैं ऐड करते जाऊंगा काउंट में। पहले लिस्ट की लेंथ होगी 3, दूसरे लिस्ट की लेंथ भी होंगी 3, तो 3 और 3 वर्ड, 2 लाइन के 6 वर्ड हो गए, तीसरी लाइन का 7वां, तो 6 और 1 7, ऐसे पूरे लाइंस के वर्ड के काउंट को वो काउंट करते जाएगा फॉर लूप जब चलते जाएगा। फिर से अच्छे से समझना, एक फाइल ओपन की, यस, फॉर लूप लगाया, फॉर इटरेटिव वेरिएबल इन सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? फाइल ऑब्जेक्ट, लेकिन इटरेटिव वेरिएबल पॉइंट कर रहा है पहला लाइन को, पहली लाइन को, क्योंकि fo लिखा तो पहली लाइन को। फिर वर्ड नाम का एक वेरिएबल लिया, लाइन डॉट स्प्लिट। लाइन किसको पॉइंट कर रहा? लाइन किसको पॉइंट कर रहा? लाइन के अंदर क्या? लाइन इज इटरेटिव वेरिएबल, वो पॉइंट कर रहा फाइल ऑब्जेक्ट। फाइल ऑब्जेक्ट मतलब एड्रेस, पहली लाइन को पॉइंट कर रहा, लेकिन उस पहली लाइन की एड्रेस किसके पास है बेटा? लाइन वेरिएबल के पास, क्योंकि इटरेटिव वेरिएबल लगा रहा ना मैं। जैसे कोई अरे है, तो अरे की फर्स्ट एड्रेस फॉर इटरेटिव वेरिएबल इन सीक्वेंस। अब फाइल ऑब्जेक्ट सीक्वेंस का काम कर रहा है, फाइल ऑब्जेक्ट जबकि पॉइंटर है, लेकिन वो सीक्वेंस का काम कर रहा है। उस पॉइंटर को पॉइंट कौन कर रहा? लाइन। तो उस लाइन डॉट स्प्लिट, स्प्लिट मेथड क्या करता है? उस लाइन के अंदर जितने वर्ड्स होते हैं उनको सेपरेट, डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन में लिस्ट के फॉर्म में सेव रखता है, और वो काउंट मैं वर्ड में रख रहा हूँ। ठीक है, अब इनिशियली मेरा काउंट तो क्या था? 1 था, तो काउंट प्लस इक्वल्स टू लेंथ ऑफ वर्ड। एक वर्ड के अंदर
कितने मतलब वर्ड नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर स्प्लिट करने के बाद जितने वर्ड्स आ गए उसकी लेंथ को मैं काउंट में ऐड करते जाऊंगा। तो जैसे हमारे प्रोग्राम में देखो पहली बार हम आए, फाइल पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा था, फॉर लूप लगाया, पहली लाइन को रीड किया उसने, रीड करने के बाद हमने स्प्लिट कर दिया लाइन को, तो लाइन को स्प्लिट करने के बाद उसके अंदर 3 एलिमेंट आ जाते हैं, वेलकम, ना टू और HMIT 3। तो लेंथ ऑफ वर्ड क्या हो गया 3, तो काउंट को 3 से बढ़ा देगा। फिर दूसरी लाइन में जब फॉर लूप दूसरे इटरेशन के लिए चला तो फिर से स्प्लिट किया हमने लाइन को स्प्लिट किया, उसको वर्ड में सेव किया, तो लेंथ ऑफ वर्ड कोरोना 1, बैच 2, 2020, ओके 2020, हाँ 2020, तो ये फिर से लेंथ 3 होंगी, तो पुराना भी 3 था, 3 + 3 6 हो जाएगा। फिर थर्ड लाइन के लिए 1 ईच है, तो 6 + 1 7, ऐसे लेंथ बढ़ते जाएंगी काउंट की। अगेन आई एम गोइंग टू टेल, वेरी सिंपल। फाइल को ओपन किया, फाइल ऑब्जेक्ट पॉइंट करता है पहली लाइन को, फिर उस पहली लाइन के लिए मैंने एक फाइल पॉइंटर लगा लिया, मतलब फाइल एक इटरेटिव वेरिएबल लगा दिया, फॉर इटरेटिव वेरिएबल इन सीक्वेंस, तो फाइल ऑब्जेक्ट अब सीक्वेंस बन गया। तो फाइल की पहली लाइन, उस पहली लाइन को अभी लाइन वेरिएबल पॉइंट कर रहा है, तो उस लाइन डॉट स्प्लिट, उस लाइन को स्प्लिट करने के बाद जो आंसर आएगा वो वर्ड में सेव कर दिया, क्योंकि लाइन में क्या है, वेलकम टू HMIT, तो वेलकम एक वर्ड, HMIT दूसरा वर्ड, टू वेलकम टू दूसरा वर्ड, वेलकम टू HMIT, तो टू एक वर्ड, वेलकम एक वर्ड और HMIT, ये तीनों वर्ड्स वर्ड में सेव रहेंगे। तो वर्ड की लेंथ मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स, उसको काउंट में ऐड करते जाएंगे। ये लूप कितनी बार चलेगा, जितने लाइंस मेरे प्रोग्राम में रहेंगे। तो आपके बुक में क्या है बेटा, ये सेम दिया गया है उधर फर्स्ट वाले प्रोग्राम में। पहला प्रोग्राम में नंबर ऑफ लाइंस, तो उसमें ये लाइन नहीं होना, और जब नंबर ऑफ वर्ड्स है तो ये लाइन ऐड हो गई, बाकी पूरा प्रोग्राम सेम। फाइल पॉइंटर को क्लोज कर दिया, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ फाइल आर काउंट को डिस्प्ले कर दे रहे हैं। तो फिर से मैं मीनिंग बताता हूँ आपको, पहले इसको रन करूँ अगर, तो यू विल गेट व्हाट इट इज सेइंग। देखो, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ फाइल आर 38, यू कैन काउंट द वर्ड्स, ओके, स्क्रीनशॉट निकालो, काउंट करो 30, हमारे कितने वर्ड्स है, लुक एवरीवन, 38 वर्ड्स है, 38 वर्ड्स, ओके। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38, 38 वर्ड्स है, ओके, यू कैन ऑल्सो काउंट। सो 38 वर्ड्स है। कैसे प्रोग्राम रन हुआ बेटा पता है क्या, एक फाइल ओपन की, फाइल पॉइंटर ऑब्जेक्ट है ना, वो पहली लाइन को पॉइंट कर रहा है, ओके। फाइल इटरेटिव वेरिएबल इन सीक्वेंस, तो इटरेटिव वेरिएबल पहली लाइन को पॉइंट करता है, लेकिन पहली लाइन को हमने स्प्लिट कर दिया और उसको वर्ड नाम के वेरिएबल में रख दिया, तो स्प्लिट होके वो क्या बन गई पता है क्या, वेलकम एक अलग वर्ड बन गया, टू एक अलग वर्ड बन गया, HMIT एक अलग वर्ड बन गया, बराबर है। फिर वो उस वर्ड के अंदर की लेंथ को काउंट में बढ़ाते जा रहा। तो ऐसे में नंबर ऑफ, इसको और अच्छे से समझने के लिए देखो मैं आपको एक्सपेरिमेंट करवा के देता हूँ। यहाँ पे स्प्लिट करने के बाद वर्ड में क्या आता है वो प्रिंट करते हैं हम, तो आपको समझेंगे हम कर क्या रहे, ओके। प्रिंट वर्ड, तो लेंथ भी देगा और पूरी फाइल भी प्रिंट होगी। यहाँ पे क्या होगा पता है क्या, पहली लाइन को स्प्लिट करने के बाद उसको वर्ड में सेव कर रहे तो वो पहली लाइन प्रिंट कर देगा, किसके फॉर्म में पता है, लिस्ट के फॉर्म में, क्योंकि स्प्लिट मेथड लिस्ट में पढ़ा है हमने, याद रखना। और स्ट्रिंग इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ लिस्ट, ओके। सो लुक एवरीवन, देखो ध्यान दो, उसने पहली लाइन को वर्ड वेरिएबल के अंदर लिस्ट के फॉर्म में सेव किया, तो इस लिस्ट के एलिमेंट कितने हैं, वेलकम ना 2 और HMIT 3 वर्ड्स हो गए। फिर जब फॉर लूप का दूसरा इटरेशन चला तो फिर 1 2 3, फिर तीसरा चला 4, ऐसे कितने वर्ड्स मिल गए उसको, ये पूरा लिस्ट में एक एक लाइन में एक एक लिस्ट, क्योंकि हर एक लाइन में एक बार हम एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं स्प्लिट मेथड से। तो पहली लाइन की लिस्ट बनी, उसकी लेंथ ऐड कर दी काउंट में, तो 3 3 + 3 6, फिर 1 7,
ऐसे पूरे फाइल का काउंट करने के बाद फाइनली वो हमें बता रहा है द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ फाइल आर 38. द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ फाइल आर 38. टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ फाइल आर 38 बता रहा है वो हमें. ओके, सो दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ फाइल. एवरीवन इज गेटिंग. जब भी हम किसी फाइल को ओपन करते हैं, विथ से ओपन करो, नॉर्मल ओपन करो. विथ हमने पढ़ चुका है सिंटैक्स, वो वीडियो देखना समझेगा. उसका फाइल पॉइंटर उसकी पहली लाइन को पॉइंट करता है. फिर फॉर लूप लगा दिया एक वेरिएबल इन सीक्वेंस, तो उस सीक्वेंस की पहली लाइन को अभी लाइन पॉइंट कर रहा है. अरे एफओ पॉइंट कर रहा फाइल को और उसको पॉइंट कर रहा लाइन. उस लाइन को डॉट स्प्लिट मेथड से मैंने स्प्लिट कर दिया, तो जो स्प्लिट होने के बाद आंसर आया वो सेव किसमें किया, वर्ड में. तो ये पहली लाइन, उस पहली लाइन को मैं प्रिंट कर रहा था. प्रिंट करने के बाद द लेंथ ऑफ दैट वर्ड, पहली लाइन की लेंथ को ऐड कर दो काउंट में. तो पहली लाइन का काउंट मिला. ये फॉर लूप एक बार चला, फॉर लूप खत्म हो गया. फॉर लूप दूसरे इटरेशन के लिए चला. अब दूसरी लाइन के लिए गया वो फाइल के सीक्वेंस में. फिर उसी वर्ड वेरिएबल में हमने दूसरी लाइन को स्प्लिट करके सेव कर दिया. फिर दूसरी लाइन को प्रिंट किया. फिर दूसरी लाइन का काउंट पुराने काउंट में ऐड कर दिया. ऐसे तीसरी लाइन, चौथी लाइन, अगली लाइन, हर एक लाइन हो जाने के बाद तो पहली लाइन का वर्ड काउंट, वर्ड लेंथ ऐड हो गई काउंट में. फिर दूसरी लाइन को स्प्लिट किया तो उसका लेंथ वर्ड ऐड कर दिया. ऐसे कर करके पूरा हो जाने के बाद, ऐसा कर करके पूरा हो जाने के बाद हमको फाइनली टोटल वर्ड्स इन द फाइल इज नथिंग बट काउंट मिलता है. आर यू गेटिंग एवरीवन? इस प्रोग्राम के लिए आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको समझा कि नहीं बेटा. ओके, सो एक फाइल ओपन की हमने रीड मोड में, फॉर लूप लगाया, कोई भी वेरिएबल लो, लाइन की जगह एल ले लो, वॉट एवर यार वेरिएबल है ना वो. फॉर एल इन सीक्वेंस, तो मैं क्या लिखूंगा, एल डॉट स्प्लिट. फॉर इटरेटिव वेरिएबल इन सीक्वेंस, इटरेटिव वेरिएबल डॉट स्प्लिट. पहले एफओ पॉइंट कर रहा फाइल को, अब उस लाइन को सीक्वेंस बना दिया मैंने, तो उस सीक्वेंस को पॉइंट कौन कर रहा, एल, मेरा इटरेटिव वेरिएबल. फॉर का इटरेटिव वेरिएबल यार आई जे के. फिर आई डॉट स्प्लिट, मतलब पहली लाइन को स्प्लिट करो तो उसके अंदर जितने भी वर्ड्स बनेंगे वो सेव किस में रहेंगे, वर्ड में. तो उस वर्ड को प्रिंट भी कर दिया मैंने, आपको दिखाने के लिए प्रिंट किया, सिर्फ आपको नहीं करना है, आपको जो डायरेक्ट काउंट देना है. फिर लेंथ ऑफ दैट वर्ड, हमारे पहले लाइन में कितने वर्ड्स है, 3, तो 3 ऐड हो जाएगा इनिशियली काउंट के अंदर. काउंट को इनिशियली 0 लिया है, 0 प्लस 3 3, फिर अगले में भी 3, 3 प्लस 3 6, फिर अगले में 1, फिर 7. ऐसे फॉर लूप चलेगा एक एक लाइन के लिए. पूरे लाइन खत्म हो जाएंगे, फॉर लूप फिनिश, हमारे एफओ का सीक्वेंस फिनिश. फाइनली क्लोज, देन टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ फाइल और उसका काउंट. ओके, सो पहले गिना हमने नंबर ऑफ लाइंस. अरे यार इसको हटा दो, किसको हटा दो, इसको. डायरेक्ट काउंट को बढ़ाओ. और ये प्रिंट तो मैंने खुद लिखा है ना एक्स्ट्रा, ये प्रिंट तो मैंने लिखा है एक्स्ट्रा समझने के लिए. इस लाइन को हटा दो, तो वो प्रोग्राम, इस लाइन को हटा दिया हमने, तो हमारा प्रोग्राम किसके लिए बन जाता है, काउंट को 1 से बढ़ाना है सिर्फ, तो हमारा प्रोग्राम बन जाता है नंबर ऑफ लाइंस के लिए. उसमें एक लाइन ज़्यादा लिख दी, लेंथ ऑफ वर्ड. स्प्लिट की लाइन हटा दी, काउंट को 1 से बढ़ाओ, स्प्लिट की लाइन डाल दी, तो प्रोग्राम बन गया नंबर ऑफ वर्ड्स के लिए. अब नंबर ऑफ कैरेक्टर का प्रोग्राम पढ़ेंगे हम. अब कौन सा प्रोग्राम पढ़ेंगे हम, नंबर ऑफ कैरेक्टर. ओके, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर भी बहुत आसान है, लेकिन उसमें ध्यान देना हम क्या करेंगे. यहाँ पे काउंट को इनिशियली 0 लिया, फाइल को ओपन किया, रीड मोड में ही हमारा एफओ है फाइल पॉइंटर. फॉर इटरेटिव वेरिएबल इन सीक्वेंस वर्ड लाइन डॉट स्प्लिट, लाइन को स्प्लिट करके हमने वर्ड में सेव किया. ओके, ये लाइन क्या है बेटा, लाइन बोले तो पूरी लाइन. अब लाइन को स्प्लिट करते हम वर्ड में, बराबर है. लेकिन अब हम क्या लिखते थे, एलियन ऑफ वर्ड. मैं अब एलियन ऑफ वर्ड नहीं मांग रहा हूँ, स्प्लिट तो कर दिया मैंने, स्प्लिट तो कर दिया. वर्ड इक्वल्स टू लाइन डॉट स्प्लिट, है ना. मैं क्या कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, काउंट प्लस 1 इक्वल्स टू लेंथ ऑफ वर्ड, नहीं लेंथ ऑफ लाइन, क्योंकि लाइन के अंदर जितने भी वर्ड्स होंगे उन वर्ड्स को मिला के उनकी लेंथ कितनी होगी, उन वर्ड्स को मिला के उनकी लेंथ कितनी होगी. तो लाइन की लेंथ मतलब जैसे हमारी ये लाइन है ना, इस लाइन की लेंथ क्या होंगी, वेलकम टू HMIIT, वेलकम टू HMIIT, बराबर है. तो इसके अंदर नंबर ऑफ वर्ड्स,
लेकिन ये ब्लैंक स्पेस को भी गिनेगा क्या? हाँ, तो ब्लैंक स्पेस को नहीं गिनना चाहिए, इसलिए हमने उसे स्प्लिट किया। ब्लैंक स्पेस को नहीं गिनना चाहिए इसलिए स्प्लिट किया। लाइन डॉट स्प्लिट वो सेव हुआ वर्ड में। अब लेंथ ऑफ लाइन, लेंथ ऑफ लाइन काउंट को 1 1 से बढ़ाते गए। तो सिंपल नंबर ऑफ लाइंस के लिए सेम प्रोग्राम इसके प्रीवियस वाला देखोगे तो आप वहाँ क्या था बेटा, लाइन को स्प्लिट करते थे लेकिन लेंथ वर्ड की लेते थे क्योंकि नंबर ऑफ वर्ड होना था हमें, बराबर है। सेम प्रोग्राम, एक ही लाइन का चेंज है, सिर्फ एक ही लाइन का चेंज है। यहाँ पे लेंथ ऑफ वर्ड लिखते थे, यहाँ पे लेंथ ऑफ लाइन लिख दो। क्या हो गया? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, क्योंकि लाइन बोले तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। एक लाइन में कितने कैरेक्टर्स है? लेंथ ऑफ लाइन, लेंथ ऑफ लाइन मतलब एक लाइन में कितने कैरेक्टर, जितने भी होंगे पहली लाइन में काउंट में बढ़ा दो। फिर दूसरी फॉर लूप दूसरी बार चलेगा तो दूसरी लाइन में जितने भी होंगे फिर दूसरी बार बढ़ते जाएंगे। ऐसे फॉर लूप चलते जाएंगे। कब तक? जब तक पूरी फाइल रीड नहीं होती। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर बताता है। ओके, सो दिस ऑल्सो आई एम गोइंग टू रन। नंबर ऑफ कैरेक्टर देखो कितने, 224। अब आप मुझे कमेंट में बताना ये विदाउट ब्लैंक स्पेस कंसिडरिंग है कि ब्लैंक स्पेस इंक्लूडिंग है। ब्लैंक स्पेस इंक्लूडिंग है, याद रखना, तुम चेक करके बताना। ओके, तो फाइल को ओपन किया, मैं देखूंगा कमेंट में जो देगा मुझे पता चलेगा आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। ओके, डेफिनेटली बताना, ये टास्क है आपके लिए वैष्णवी बेलगमवार। ये जो मैं लेंथ गिन रहा हूँ ये ब्लैंक स्पेस को गिन के लेता है कि उसे एक्सक्लूड करके लेता है, ये आपको मुझे बताना है। ओके, ये आप मुझे बताओगे बेलगमवार। सो वर्ड स्प्लिट कर देता है तो वो तो वर्ड में ही सेव रहेगा, वर्ड को तो यूज ही नहीं कर रहे हम। लेंथ ऑफ लाइन, तो लाइन की लेंथ काउंट में बढ़ते जाएंगे, फाइनली काउंट को प्रिंट करेंगे तो नंबर ऑफ क्या मिलेंगे मुझे? कैरेक्टर्स। नंबर ऑफ कैरेक्टर 224, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 224। तो 3 प्रोग्राम है बेटा सिंपल वाले हमारे, है ना। एक प्रोग्राम हमने कौन सा पढ़ा? नंबर ऑफ लाइन, सबसे आसान, फॉर लूप के अंदर काउंट को 1 1 से बढ़ाते जाने का। फिर उसके बाद देखा हमने, उसके बाद क्या देखा? नंबर ऑफ वर्ड्स, तो लेंथ ऑफ वर्ड्स को ऐड कर देने का, काउंट में पहले स्प्लिट करना जरूरी। फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देखे तो कैरेक्टर्स में लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स ये वर्ड ही है तो कैरेक्टर्स में लेंथ ऑफ लाइन, ये ब्लैंक स्पेस को भी लेता है, ये आप प्रूफ करना, ठीक है। और सबसे पहला प्रोग्राम जो पढ़ा था वो वॉवेल्स, तो वहाँ फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लिखते थे तो वो एक एक कैरेक्टर रीड करता था। अभी हम रीड नहीं लिख रहे, डायरेक्ट फॉर लूप क्या लगा रहे? फॉर इटरेटिव वेरिएबल इन सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? फाइल ऑब्जेक्ट। जब भी कैरेक्टर, अल्फाबेट मतलब कैरेक्टर, वर्ड्स गिनने हैं हमें, सबसे पहले हमने नंबर ऑफ लाइंस गिने, तब भी क्या लगाया? फॉर इटरेटिव वेरिएबल इन फाइल पॉइंटर सीक्वेंस। फॉर इटरेटिव वेरिएबल इन फाइल पॉइंटर सीक्वेंस। डॉट रीड नहीं लिखने का। डॉट रीड कब लिखने का? लिखने का नहीं, कब लिखने का? जब मुझे कैरेक्टर कैरेक्टर को रीड करना है या लाइन को रीड करना है तो डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्लिट कर दो तो वर्ड्स मिल जाएंगे, है ना। और लेंथ ऑफ लाइन नंबर ऑफ कैरेक्टर देता है हमें। ओके, सो इतने प्रोग्राम देखे हमने। नाउ अनदर प्रोग्राम इज नथिंग बट, ओके, किसी फाइल के अंदर ब्लैंक स्पेसेस कितने हैं वो गिनना। किसी फाइल के अंदर ब्लैंक स्पेसेस कितने हैं, हाउ मेनी ब्लैंक स्पेसेस इन द फाइल। ये भी बहुत आसान है। सेम इनिशियली काउंट को ले लो 0, फाइल को ओपन किया, वही मेरी फाइल है sudesh1.txt, निविदा एक ही फाइल है, पांडव नहीं, sudesh.txt। fo इज अ फाइल ऑब्जेक्ट फॉर इटरेटिव वेरिएबल इन सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है बेटा? फाइल ऑब्जेक्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। वर्ड एक वेरिएबल है लाइन डॉट स्प्लिट, तो जब हम स्प्लिट करते हैं तो वो क्या बना देता है? उसे लिस्ट बना देता है। तो एक लाइन की लिस्ट बन के वर्ड में सेव हो गई, उसके अंदर एक फॉर लूप लगा। फॉर लूप के अंदर फॉर लूप का मतलब समझता है आपको? फॉर लूप के अंदर फॉर लूप का मतलब समझता है? आउटर लूप की एक वैल्यू के लिए इनर लूप पूरा चलता है। मतलब एक लाइन के लिए, एक लाइन के लिए वो हर एक कैरेक्टर को चेक करेगा, क्योंकि मुझे ब्लैंक स्पेस ढूंढनी है भाई। वर्ड के बीच में भी तो एक ब्लैंक स्पेस रहती है ना। तो सबसे पहले एक फॉर लूप लगा दिया जो चलेगा एक लाइन के लिए, उस एक लाइन को हम स्प्लिट करके सेव कर दे रहे वर्ड में। अब उसके अंदर नंबर ऑफ वर्ड जितने होंगे उतने ब्लैंक स्पेस भी होंगे बीच में, तो उसके अंदर फॉर लूप लेके, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप है। पहला फॉर लूप है लाइन बाय लाइन चलने के लिए, और दूसरा फॉर लूप है लाइन के एक एक कैरेक्टर को रीड करने के लिए, लाइन के एक एक कैरेक्टर को रीड करने के लिए। ओके, so for iterative variable letters, letters मतलब alphabet, for iterative variable letters in words, letter in words,
इफ लेटर डॉट इज स्पेस, लेटर डॉट इज स्पेस, ये कंडीशन है। इफ लेटर डॉट इज स्पेस, तो मैं चेक क्या कर रहा हूं, जब भी मैं किसी वर्ड के अंदर गया, मतलब मैं पहले गया लाइन के अंदर, लाइन के अंदर स्प्लिट कर दिया तो मैं गया वर्ड के अंदर, बराबर है, वर्ड में चेक कर रहा, इफ लेटर डॉट स्पेस, क्या लेटर के साथ स्पेस है, अगर स्पेस है, यस, ये इस स्पेस बाय डिफॉल्ट है, इस स्पेस अगर है तो काउंट को 1 से बढ़ा देना, नहीं है तो इसके बाहर। ये फॉर लूप का, इनर फॉर लूप का एक इटरेशन, 2 इटरेशन, 4 इटरेशन, जब तक पूरी पूरी लाइन खत्म हुई तो दूसरी लाइन के लिए चलेगा, दूसरी लाइन के लिए फिर से दूसरी लाइन को स्प्लिट कर देगा। अब उस वर्ड सीक्वेंस को चेक करेगा लेटर, तो लेटर चलेगा उस वर्ड के पहले लेटर के लिए, वर्ड का पहला लेटर स्पेस है क्या नहीं है, वर्ड का दूसरा लेटर स्पेस है क्या नहीं है, वर्ड का दूसरा लेटर स्पेस है क्या नहीं है, ऐसे चलते जाएगा, है तो काउंट को बढ़ाओ, नहीं है तो 1 से आगे बढ़ जाओ। नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेस देता है, तो ब्लैंक स्पेस के लिए 2 फॉर लूप लगाए हमने, यहाँ एक नई चीज़ कैसे की, एक फॉर लूप लगाया तो हम पहली लाइन को पॉइंट कर रहे हैं, पहली लाइन को स्प्लिट करके वर्ड वेरिएबल में सेव कर दिया, फिर एक फॉर लूप लगा दिया, उस वर्ड को सीक्वेंस बना दिया लेटर नाम के वेरिएबल से, तो लेटर डॉट स्पेस, क्या उस लाइन के अंदर स्पेस है, इफ यस काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, अदरवाइज क्लोज, नहीं है, जितने भी होंगे उस काउंट को प्रिंट कर देंगे। अब हमारे प्रोग्राम में स्पेस कितने हैं ये गिन के मुझे प्रियांशी बताएंगे कमेंट में, ओके, अभी आउटपुट में दिख जाएगा प्रियांशी आपको, स्मार्ट वर्क करो ना आप, ओके। टोटल नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेसेस इन द फाइल आर 38, टोटल नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेसेस इन द फाइल आर 38, तो यू कैन क्रॉस चेक इट इज राइट और नॉट, क्योंकि नंबर ऑफ वर्ड्स को भी 38 दिया था हमने, नंबर ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स, ओके, नंबर ऑफ वर्ड्स 38, इट डजेंट मैटर, ब्लैंक स्पेस भी उतने होंगे जितने वर्ड्स होंगे, क्योंकि वर्ड होगा तो ब्लैंक स्पेस आएंगी ना, वर्ड होगा तो ब्लैंक स्पेस आएंगी ना। वी कैन क्रॉस चेक, यू कैन ऑल्सो क्रॉस चेक, इट इज ओनली फॉर यू, दैट इज अ टास्क फॉर यू, ओके। सो ये प्रोग्राम हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेसेस इन द प्रोग्राम, एक वर्ड लिया, वर्ड डॉट स्प्लिट कर दिया हमने, हमारा प्रोग्राम ये नहीं है, हमारा चल रहा है अभी ब्लैंक स्पेस वाला, ओके। तो ब्लैंक स्पेस, टोटल नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेसेस इन द फाइल आर, एक फॉर लूप लगा दिया, फॉर लूप एफओ पॉइंट कर रहा है पहले लाइन को, उस पहली लाइन को हमने क्या कर दिया बेटा, इटरेटिव वेरिएबल की मदद से स्प्लिट कर दिया, उसको सेव रख दिया वर्ड में, है ना, लाइन डॉट स्प्लिट, मैंने एफओ को स्प्लिट नहीं किया है, यहाँ लाइन डॉट स्प्लिट किया है मैंने, है ना, ओके। लुक एवरीवन, देखो बेटा, ओके, लाइन पॉइंट कर रहा है एफओ को, और एफओ है पहली लाइन, पहली लाइन का मेमोरी पॉइंटर लाइन, लाइन को स्प्लिट कर दो, बन गया वर्ड, वर्ड से हो गए किसमें, वर्ड वेरिएबल में, उस वर्ड वेरिएबल को सीक्वेंस बना दिया, फिर उसके अंदर लेटर नाम को चेक करा, लेटर डॉट स्पेस, क्या लेटर के बाद स्पेस है तो काउंट को बढ़ा दो, नहीं है तो मत बढ़ाओ, तो जितने ब्लैंक स्पेस होंगे हमें आउटपुट में मिलेंगे, ओके। सो दैट वाज नथिंग बट our number of programs we have seen, तो पहला प्रोग्राम था write the python program to count the total number of lines that we have seen, total number of words that we have seen, write the program to count the total number of characters that we have seen, write a program to total number of blank spaces, now we have that also we have seen blank spaces, है ना। तो देखो बेटा, लाइन स्प्लिट करने के ईच वर्ड ऑफ एवरी लाइन कलेक्ट करता है, कमेंट के फॉर्म में लिखा है, फिर फॉर दूसरा फॉर लूप लगाते, तो गेटिंग ईच लेटर फ्रॉम ईच वर्ड, हर एक लेटर का, हर एक वर्ड हम चेक करते, इफ लेटर इज स्पेस, लेटर स्पेस है क्या, है तो काउंट को बढ़ा, नहीं तो चुप, है तो बढ़ाते जाएंगे अकाउंट को, नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेसेस, अलग अलग प्रोग्राम, उनकी फाइल अलग लिए उन्होंने, उनकी ब्लैंक स्पेस 4 आ रही है क्योंकि उन्होंने फाइल कितनी ली है, देखो ना ब्लैंक स्पेसेस कितने आ रहे हैं यहाँ पे, इनके 4 आ रहे हैं, 1 2 3 4, ओके, ये इनकी फाइल है, ओके। तो हम जो भी फाइल लेंगे, मैंने सुदेश फाइल ली थी ना, एनी फाइल यू कैन टेक। सो लास्ट प्रोग्राम हमारा, राइट द पाइथन प्रोग्राम टू राइट द कंटेंट ऑफ वन फाइल टू अनदर फाइल फ्रॉम एंड, फ्रॉम एंड का मतलब रिवर्स होता है, ऐसा सेम प्रोग्राम पढ़ा था 1 to 2, एक फाइल से लो,
रीड मोड में ओपन करो, फिर राइट करो स्क्रीन पे, फिर उसको दूसरे फाइल में राइट करो। लेकिन ये क्या बोल रहा, थोड़ा समझना, ट्विस्ट प्रोग्राम है ये। साक्षी बाला, वैष्णवी मते, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू राइट द कंटेंट ऑफ वन फाइल टू अनदर फाइल फ्रॉम एंड। एक फाइल से लो लेकिन दूसरे फाइल में लिखो एंड से, मतलब एक से लो दूसरे में उल्टा लिखो, एक से लो दूसरे में उल्टा लिखो। मतलब एक फाइल में पहले पे 1 है, 2 है, 3 है, तो 3 लिखो दूसरे फाइल में पहली जगह पे, 2 लिखो दूसरी जगह पे, 1 लिखो तीसरी जगह पे। मतलब एक फाइल से लो रिवर्स लिखो दूसरी फाइल में, ये इसका मतलब है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू राइट द कंटेंट ऑफ वन फाइल टू अदर फाइल फ्रॉम एंड। तो एंड से शुरू करना है आपको। फॉर दैट फाइल हैंडलिंग प्रोग्रामिंग का लास्ट प्रोग्राम बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। इसमें एक नई चीज़ सीखने वाले बेटा हम। देखो, एक लाइंस नाम की लिस्ट ब्लैंक ले ली मैंने, पता है क्यों? क्योंकि जब मैं एक फाइल से लूँगा तो लेने के बाद उसे रिवर्स सेव करना पड़ेगा मुझे लिस्ट में, तब मैं उसको एक्सेस करूँगा ना। क्योंकि एक फाइल ओपन तो कर दी 1 2 3, तो वो 3 को मैं खाली लिस्ट में पहली जगह रखूँगा, 2 को खाली लिस्ट में दूसरी जगह रखूँगा, और 1 को खाली लिस्ट में तीसरी जगह रखूँगा। रिवर्स हो जाएगा, वाइस वर्सा। ओके, कैसा रखेंगे हम? पता है कि एक फाइल के अंदर सपोज 1 है, 2 है और ये 3 है, लेकिन मुझे क्या करना है, 1 की जगह लाना है 3 को, ओके, 2 की जगह लाना है 2 को, देन 3 की जगह लाना है 1 को। ये सारा कारोबार हमें करना है। ओके अभिलाषा, देखो, तो लाइंस नाम की एक लिस्ट क्रिएट की, यस, विथ ओपन किया सुदेश डॉट टी एक्स टी फाइल को, फाइल ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, एफओ, लाइन्स इक्वल्स टू एफओ डॉट रीड लाइन्स। यहाँ एक नई चीज है, रीड लाइन्स नंबर ऑफ लाइन्स गिनता है, तो एफओ डॉट रीड लाइन्स पूरे लाइन्स गिन के लाइन्स के अंदर सेव हो जाएंगे। और लाइन्स क्या है बेटा, एक लिस्ट है, तो पूरे लाइन लिस्ट के अंदर जमा हो जाएंगे। लाइन्स एक एम्प्टी लिस्ट है, उसमें मैंने पूरे लाइन्स रीड करके रख दिए, पूरे लाइन रीड करके रख दिए, पूरे लाइन रीड करके रख दिए। एक फाइल ओपन की, एक फाइल ओपन की, ओके, जस्ट ओपन की, ओके। अब आप मोड स्पेसिफाई करो मत करो, वो लेता है बाय डिफ़ॉल्ट मोड, लेकिन हम रीड मोड में ओपन कर रहे हैं उसको। ठीक है ना, 98 માં 91 સાફ થયા નહીં હોતમાં. હા થોડા તમારું ત્યાં okay, so file mode we are going to perform here. So what exactly we are going to do here, देखो बेटा ध्यान देना, मैं आपको फाइल ओपन करके दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा रुक गया बीच में। हाँ देखो, ये फाइल है मेरी, इसको जब भी हम ओपन करते हैं रीड मोड में ओपन करेंगे तो ये फाइल का पहला कैरेक्टर लेगा, मतलब पहली लाइन लेगा और इसको सेव करेगा। लेकिन इस फाइल की रिवर्स फाइल बनानी है हमें, वो दिखाने के लिए मैं आया था यहाँ पे। तो सबसे पहली लाइन आनी चाहिए, दिस इज़ द लास्ट लाइन, ये पहली लाइन पे आनी चाहिए थी, और वेलकम टू HMIIT आएगा, है ना, ठीक है। सो लुक एवरीवन, व्हाट वी हैव टू डू हियर, बहुत आसान सा प्रोग्राम है, और दिस इज़ द लास्ट प्रोग्राम फॉर फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग का लास्ट प्रोग्राम है, बहुत सिंपल। एक फाइल को ओपन कर दिया बेटा रीड मोड में, यस ओपन किया रीड मोड में, उसका फाइल पॉइंटर है एफओ, एफओ डॉट रीड लाइन्स, रीड लाइन्स, लाइन्स है, लाइन्स, लाइन्स बोले तो सारे लाइन उठा के रख देगा लाइन्स लिस्ट के अंदर। लिस्ट के अंदर नंबर ऑफ लाइन्स, एक लाइन बोले तो लिस्ट का एक एलिमेंट, एक लाइन बोले तो लिस्ट का एक एलिमेंट, ठीक है, ठीक है। उस फाइल को क्लोज कर दिया, कर दिया। विथ ओपन रिवर्स्ड फाइल डॉट टी, ये मैंने नाम दिया है क्योंकि जो सुदेश फाइल है ना उसको रिवर्स करके रिवर्स्ड फाइल नाम में सेव रखना है। और जब भी कोई फाइल को हम ओपन करते राइट मोड में, वो क्रिएट न भी की हुई हो तो क्रिएट हो जाती है, क्रिएट नहीं भी की हो तो क्रिएट हो जाती है। क्रिएट नहीं भी की रही प्रतीक्षा, प्रतीक्षा नहीं अभिलाषा, क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे कोई फाइल दिख रही है आपको रिवर्स नाम की नहीं है, लेकिन प्रोग्राम को रन करने के बाद क्रिएट हो जाएंगी, क्रिएट हो जाएंगी, ओके। यहाँ सुदेशी फाइल है लेकिन उसको हम अदर सीक्वेंस में सेव करेंगे,
रिवर्स हो जाने के बाद वो अदर सीक्वेंस में सेव हो जाएंगी. ओके, सो देखो बेटा, अवर लास्ट प्रोग्राम वी आर गोइंग टू से. सो ओपन किया सुदेश फाइल को, उसका फाइल पॉइंटर है एफओ, बार बार वही बोल रहा मैं. लाइंस में हमने रीड लाइंस, पूरे लाइंस को सेव कर दिया और इस फाइल को कर दिया प्रियांशी क्लोज. फिर ओपन कर रहे एक नई फाइल जिसका नाम है रिवर्स फाइल, राइट मोड में. पहली ओपन की रीड, क्योंकि पहले से लेना है और दूसरे को देना है. पहले से लेना है, सुदेश से लेना है, देना कुछ नहीं है. हाँ, और रिवर्स फाइल में राइट करना है, मतलब देना है. ओके, अब यहाँ एक लूप लगा है, ये समझने जैसा है. फॉर इटरेटिव वेरिएबल लाइंस, एक इटरेटिव वेरिएबल या इन सीक्वेंस, सीक्वेंस को ही मैंने कीवर्ड्स के थ्रू रिवर्स्ड लाइंस, जो लाइंस है ना उसको रिवर्स कर दो. रिवर्स लाइंस मतलब प्रीडिफाइंड मेथड यूज कर रहे हैं, इसलिए देखो प्रीडिफाइंड, इसलिए इसका कलर कैसे आ रहा है बेटा. जैसे ओपन फंक्शन है तो इसका कलर कैसे आ रहा है, कीवर्ड नहीं है, फॉर कीवर्ड है तो रेड में आ रहा है. ओपन प्रीडिफाइंड है तो देखो दिख रहा है ना आपको, येलो, कौन सा कलर है ये, बैंगनी कलर है ना. ओपन, दिस इज रिवर्स ऑल्सो प्री डिफाइंड. तो रिवर्स क्या कर देता है, रिवर्स लिस्ट, याद करो लिस्ट में रिवर्स पढ़ा था, जो लाइंस नाम की लिस्ट है उसको रिवर्स बना देगा. रिवर्स बनाने के बाद जो पहला था वो आखिरी हो जाएगा, उसको राइट लाइन कर देंगे. फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट, तो रिवर्स में लिख देगा वो पूरा प्रोग्राम. सुदेश नाम की फाइल रीड मोड में ओपन की, ठीक है. उसके सारे लाइंस मैंने लाइंस वेरिएबल में लिस्ट में सेव रख दिए. फिर उस फाइल को क्लोज कर दिया. सुदेश की फाइल क्लोज, आपका सेमेस्टर खत्म, फाइल क्लोज. ओके, विथ ओपन मेथड से हम एक नई फाइल बना रहे. बनी होंगी तो होंगी, नहीं होंगी तो क्रिएट होंगी, क्योंकि ये मोड कौन सा है प्रियंका, राइट मोड में कोई भी फाइल ओपन करते हैं तो वो क्रिएट भी करता है. क्रिएट करने के बाद एक लूप लगाए. लूप तो लगाना ही पड़ता है फाइल के अंदर जाने के बाद, रीड करना है तो. यहाँ क्यों नहीं लगाया सर, ये रीड लाइन्स है, कोई लूप की जरूरत नहीं, पूरे लाइन एक साथ ले लेता है. लूप लगाना, लूप कब लगाते, जब एक एक लाइन करके जाना है तो लूप लगाओ, और पूरे लाइन्स उठाना है तो रीड लाइन्स. पूरे लाइन्स आ गए लाइन्स वेरिएबल लिस्ट के अंदर. फिर दूसरी फाइल जब ओपन की हमने तो फॉर एक वेरिएबल लगा इटरेटिव सीक्वेंस इन, फॉर इटरेटिव वेरिएबल इन सीक्वेंस. सीक्वेंस की जगह देखो मैंने लिस्ट तो पास किया लेकिन लिस्ट को रिवर्स करके पास कर दिया. लिस्ट तो पास की लेकिन लिस्ट को रिवर्स करके पास किया. तो रिवर्स लिस्ट के अंदर हम राइट कर रहे हैं किसको, लाइन को. लाइन क्या, इटरेटिव वेरिएबल. फिर से समझाता हूँ. एक लिस्ट ली खाली जिसका नाम है लाइंस, एक फाइल ओपन की सुदेश रीड मोड में. ओके, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट है एफओ, फाइल ऑब्जेक्ट. फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइंस, उस फाइल के सारे लाइंस रीड होके लाइंस लिस्ट में सेव हो गए. उस फाइल को कर दिया क्लोज. फिर से एक फाइल ओपन की, रिवर्स फाइल डॉट टी नाम की होगी तो ओपन होगी, नहीं होगी तो क्रिएट होंगी, क्योंकि हमारा बेटा मोड कौन सा है, राइट मोड में. जब भी कोई फाइल ओपन करने जाओ, नहीं है तो वो क्रिएट होती है. उसका फाइल ऑब्जेक्ट भी एफओ, ऊपर वाले का काम हो गया इसलिए एफओ. सेम उसमें फॉर लूप लगाया, फॉर इटरेटिव वेरिएबल इन सीक्वेंस. सीक्वेंस में लाइंस नहीं पास कर रहा, रिवर्स्ड लाइन. रिवर्स्ड इज अ प्रीडिफाइंड मेथड. रिवर्स्ड, लिस्ट पास करो तो लिस्ट को रिवर्स करेगा, टपल पास करो तो टपल को रिवर्स करेगा, कुछ भी पास करो उसके सीक्वेंस को रिवर्स करेगा. स्ट्रिंग होना चाहिए. रिवर्स्ड लाइन, तो लाइंस को रिवर्स कर दिया. उस सीक्वेंस पे लाइन रिवर्स के पहले लाइन को पॉइंट कर रहा, तो रिवर्स का पहला राइट लाइन कहाँ पे, एफओ पे. एफओ क्या है, मेरी फाइल पॉइंटर जो रिवर्स फाइल को पॉइंट कर रहा, उसमें सेव कर देगा. तो ओपन की सुदेश फाइल रीड मोड में, उसके सारे लाइन रीड करके लाइंस लिस्ट में सेव रख दिए, उसको कर दिया क्लोज. ओपन की रिवर्स फाइल नाम, रिवर्स फाइल नाम की फाइल ओपन की राइट मोड में, उसका फाइल पॉइंटर एफओ. एक लूप लगा दिया, लाइन वेरिएबल पॉइंट करेगा, लेकिन किसको, सीक्वेंस को कर दिया रिवर्स्ड. सीक्वेंस रिवर्स हो गया तो पुराने फाइल का जो सीक्वेंस हम रीड करके लिस्ट में रखा था वो रिवर्स हो गया. तो लास्ट लाइन हो गई पहली लाइन, तो पहली लाइन को राइट करेगा मतलब लास्ट लाइन को राइट करेगा. एफओ डॉट राइट लाइन, फाइल पॉइंटर डॉट राइट, तो उस फाइल में रिवर्स पॉइंट होगा. ओके, और फाइनली कर देंगे उसको क्लोज, सेव और रन. रन होने के बाद फाइल के अंदर जाके दिखाऊंगा, कंटेंट रिवर्स दिखेंगे आपको. ओके, रन हो चुका. अभी जाना है हमें हमारे पाथ के पास.
यहाँ देखो आ गया रिवर्स फाइल क्रिएट हो गई क्योंकि ऑलरेडी नहीं थी। यहाँ सबसे नीचे है वेलकम टू HMIIT यू आर कोरोना बैच और लास्ट लाइन हो गई दिस इज द लास्ट लाइन ऑफ फाइल, बराबर है, लास्ट लाइन ऑफ फाइल। ओके, सो लास्ट लाइन ऑफ फाइल कहाँ पे आ गई, पहली लाइन पे आ गई। अब देखो मैं इसको करता हूँ सपोज डिलीट। इस उद्देश्य में देखो पहली लाइन कौन सी है, वेलकम टू HMIIT वी इंजॉय इट। इसको एक साथ ले रहा था वो, वहाँ दिखा मुझे ऐसा, है ना, ठीक है। अब यहाँ कोई भी फाइल नहीं है हमारे पास, प्रोग्राम बता रहा हूँ मैं। लुक एवरीवन, ध्यान देना बेटा प्रोग्राम की तरफ सभी। एक सुदेश नाम की फाइल ओपन की रीड मोड में, उसके सारे लाइंस रीड करके लाइंस में सेव कर दिए, उसको क्लोज कर दिया। एक फाइल ओपन की जिसका नाम है रिवर्स फाइल, लेकिन रिवर्स फाइल की जगह मैं और कुछ लिखता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ सपोज अवर निविदा, ओके, अभिलाषा, अजिलाषा, अभिलाषा डॉट txt। तो एक फाइल अभिलाषा नाम की क्रिएट होंगी राइट मोड में, मतलब उसमें लिखने जाएंगे, लेकिन एक फॉर लूप लगा दिया, लाइन नाम का वेरिएबल यूज किया, लेकिन रिवर्स कर दिया लाइंस को। तो जो पहले से लिया था उसका रिवर्स, और उसको राइट करते जाएंगे। उसका लाइन यहाँ पास करके, लाइन है इटरेटिव वेरिएबल, पहली लाइन आखिरी जगह, क्योंकि उसको कर दिया हमने यहाँ पे रिवर्स्ड। तो फॉर इटरेटिव वेरिएबल इन सीक्वेंस, अगर मैं यहाँ लिखता था इन लाइंस तो वैसा का वैसा प्रिंट होता था बेटा, लेकिन अगर मैंने लिखा क्या रिवर्स, अगर लिखा क्या मैंने रिवर्स, ओके, तो अभिलाषा नाम की फाइल राइट मोड में ओपन होंगी। फॉर इटरेटिव वेरिएबल इन सीक्वेंस को कर दिया रिवर्स, तो मेरा जो लाइंस के अंदर पहली फाइल थी वो गई रिवर्स। तो रिवर्स की पहली लाइन, आखिरी लाइन, राइट लाइन, FO फाइल पॉइंटर डॉट राइट। ऐसे ये लूप चलते रहेगा कब तक, जब तक लाइंस वाली लिस्ट खत्म नहीं होती। खत्म हो गई तो सेव। ओके, लुक एवरीवन, क्रिएट हो गई। फिर से दिखाऊंगा अभी अभिलाषा, हमारी पोइट्री अभिलाषा फाइल क्रिएट हुई। ओके, so welcome to HMIIT, this is nothing but a reverse, whatever the exceptions you can throw और see कि वो लाइन दो लाइन भी एक साथ क्यों ले रहा है, you can judge that. Okay, this is your homework task. So these are the various programs we have seen today, various programs we have seen. So we have finished all the file handling programs, we have finished all the file handling programs. Okay, so exception handling will continue from next video tutorial. Up till now, watch the all videos, study seriously, have a nice time, be safe at a home, have a nice